Good morning dear students. So welcome once again to the online class session of class 10th. Today we are going to start a new chapter of class 10th geography, that is resources and development. So we will study about what are the resources, the proper definition of resources, how they are directly connected with development, their classification of resources. So these all topics we will cover today. First of all, looking on to the definition, everything in the environment that can be used to satisfy our needs, means everything that satisfies our needs, that is a resource. But there are actually few conditions on the basis we can say that yes, it is a resource. The first condition is it should be technologically accessible, then economically feasible, and third is culturally acceptable. If anything in the environment satisfies 3 points and satisfies our needs, it is a resource. Now technologically accessible here means that when we are we have to extract some resource. Suppose there is oil inside the earth, we came to know that there is a crude oil reserve. Now we need some technology to extract that. So in that matter, is it possible that we are having a technology that can extract that resource? तो सबसे पहली चीज तो वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है या नहीं कि हम जिससे उस रिसोर्स को बाहर एक्सट्रैक्ट कर सकें. तो पहला टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना चाहिए. दूसरा इकोनॉमिकली फिजिबल, मींस जब हम उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज हमारे सामने आती है कि रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने के समय क्या हमें ये मालूम है कि ये जो रिसोर्स है इतनी क्वांटिटी में निकलेगा कि हमारे जो खर्चे हो रहे हैं, जैसे जो टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है, इस टेक्नोलॉजी को लगाने के बाद भी क्या वो इतनी क्वांटिटी में निकलेगा कि वो एक्सपेंसेस और प्लस हमें क्या ये प्रॉफिट देगा, तो आर्थिक तौर पे क्या ये हमारे लिए सही रहेगा, इकोनॉमिकली फिजिबल है कि नहीं है. और थर्ड इज कल्चरली एक्सेप्टेबल, कि कहीं पे वो जो रिसोर्स है जहां पे भी लोकेटेड है, अगर वो कोई किसी पब्लिक प्रॉपर्टी है या किसी की इंडिविजुअल है या कोई टेम्पल है या कोई इस तरह की मॉन्यूमेंट है, तो क्या सोसाइटी अलाउ करेगी कि उसको तोड़िए फोड़िए और उसके नीचे से वो रिसोर्स निकालिए. तो ये तीनों कंडीशंस अगर पूरे हो जाते हैं तो ऑब्वियसली दैट थिंग दैट सेटिस्फाइज आवर नीड इज अ रिसोर्स. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम हियर इज the types of resources. So natural resource and one is man-made or human resource. So first of all, if we talk about the natural resource provided by nature, so it is a gift of nature to us. So in the first part, when we will specify the classification, here I have classified the first of all the natural resources, classification of natural resources. So classification is done on certain criterias. What are those criterias? First is on the basis of origin, उत्पत्ति के आधार पर. तो origin के basis पे resources हमारे दो तरह के हैं, biotic and abiotic. Biotic, that is obtained from nature and it is living. Abiotic, that is non-living. Now in this video, here I have written on the basis of ownership, but in these two I have not written. One more is there after that. I have not written. So here you will write the examples, biotic and abiotic I have given, but then also you will write in the comment box. Last time only 18 of you responded. I will name it also in the second video who have given the comments. I will name it, that who have participated actively, who has seen the video properly and commented me in the box. तो जो लोग comment box में answers देंगे मैं उनका नाम next video में लूंगा. तो ये ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक एबायोटिक के एग्जांपल आप देंगे. दूसरा एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे कि कैसे वो बचा रहेगा, खत्म होगा, उसके बेसिस पे भी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के भी एग्जांपल आप देंगे कमेंट बॉक्स में विथ योर नेम, स्टूडेंट्स नेम. तो एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. अगर कोई रिसोर्स ऐसा है, इफ एनी रिसोर्स that can be renewed or reused again and again through any means physical or chemical or biological process, अगर हम उसको कई बार यूज कर ले जा रहे हैं और बार बार यूज कर ले रहे हैं तो that is a renewable resource. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो एक बार यूज होने के बाद खत्म हो जाएगा, जैसे हमारे फॉसिल फ्यूल्स. अब एग्जांपल दे भी रहा हूं, आप इसी में एक्सप्लेन कर रहा हूं और उसको आपको कमेंट बॉक्स में देना भी है. तो फॉसिल फ्यूल्स हम जानते हैं कि एक बार जो उसका स्टॉक है हमारे पास रिजर्व है वो एंड कर जाएगा, तो इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अगेन.
तो ऐसे समय में हमारे पास जो कंडीशन आई कि जैसे एक अप्रॉक्सीमेटली साइंटिस्ट ने ये एक डेटा सामने लाया कि अबाउट 100 ईयर्स, आफ्टर 100 ईयर्स इट विल लास्ट, खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया कि जो बार बार यूज नहीं किया जा सकता, एक बार यूज करने के बाद जो रिजर्व है, स्टॉक है, वो खत्म हो जाता है। तो दिस इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अगेन आई एम टेलिंग यू, यू विल गिव द एग्जांपल ऑन द बेसिस। देन द थर्ड टाइप ऑफ रिसोर्स, दैट क्लासिफिकेशन नेचुरल रिसोर्सेज की जो थी, वो थी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे, अब ओनरशिप के बेसिस पे तो कई तरीके हो गए। पहला हो गया इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल मीन्स व्यक्तिगत, जैसे मेरे पास मेरी कार है तो वो मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स है, दैट इज अ इंडिविजुअल रिसोर्स। आई हैव गिवन हियर एग्जांपल, आई हैव गिवन हियर। मेरा फार्म लैंड है, अपना खुद का पॉन्ड है, अगर खुद का बनवाया हुआ तो, पब्लिक नहीं। देन वी हैव कम्युनिटी, सामुदायिक, जो पूरे समुदाय का हो, कम्युनिटी का हो। पब्लिक पार्क्स है, तो पब्लिक पार्क है तो वहां हम भी जा सकते हैं, बगल वाले पड़ोसी का भी परिवार जा सकता है, आप भी जा सकते हो, एक्सेसिबल टू ऑल द कम्युनिटी, सो इट इज अ कम्युनिटी रिसोर्स। देन वी हैव नेशनल रिसोर्स, दैट इज जो पूरे राष्ट्र का रिसोर्स है। इसमें दो चीजें हैं, मैं आपको बता दूं टू बी वेरी क्लियर। पहला तो ये कि 12 नॉटिकल माइल्स जो हमारी पूरे कंट्री की बाउंड्री है, एंड एज वेल एज इन द ओशियंस 12 नॉटिकल माइल्स तक, मतलब लगभग 19.2 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली आप उसको 20 किलोमीटर का एक दायरा मान लो, वैसे एग्जैक्ट वो 19.2 किलोमीटर है। तो वहां तक जो जाएगी बाउंड्री, वो हमारी हो जाएगी नेशनल रिसोर्स। एक और चीज जो मैं कह रहा था, यहाँ दो चीजें हैं। दूसरा, हमारी जो अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी है या जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट के पास इलीगल पावर्स होते हैं कि किसी भी वेलफेयर या कंट्री के काम में अगर वो आ सकता है तो उसको वो एक्वायर कर सकते हैं और वो एक नेशनल रिसोर्स बन जाएगा। जैसे कोई एक्सप्रेसवे बनना है तो किसानों के खेत लिए जाते हैं और वहां से रोड बनते हुए 6 लेन 4 लेन एक्सप्रेसवे, सुपर एक्सप्रेसवे ये बनते चली जाती है, तो एक्वायर कर लिया जाता है। एयरपोर्ट बनना है, वहां का एक्वायर कर लिया जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनते हैं, जैसे नोएडा बना या इस तरह की चीजें बनी, जो इंडस्ट्रियल एरियाज बने, वहां एक्वायर करती है गवर्नमेंट जमीन। और तो इसलिए गवर्नमेंट को अधिकार है कि वो एक्वायर कर सकती है प्राइवेट प्रॉपर्टी भी, अगर नीड है कंट्री के रिगार्डिंग, तो वो सब नेशनल रिसोर्स में आ जाएंगे। अदरवाइज ये सारे नेशनल रिसोर्सेज हैं। देन वी हैव इंटरनेशनल रिसोर्स, तो ओपन सी रिसोर्सेज जो हैं, जो खुले समुद्र में हमारे, अब इसका क्राइटेरिया क्या है, 12.2 नॉटिकल माइल्स तक तो ओशियन में हमारा अपना है। 12.2 से लगाए उधर ओपन 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वो इंटरनेशनल रिसोर्स है, जिसको कोई इंडिविजुअल कंट्री नहीं यूज कर सकती है। उसको वो इंटरनेशनल रिसोर्स है, यूनाइटेड नेशंस जैसे है हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप जानते भी हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में, ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के मदद से वहां के रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाता है, कॉमनली यूज्ड होता है। तो ये हो गया तीसरा टाइप का रिसोर्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस the fourth part, that is on the basis of status of development. So on the basis of status of development, actually we are having first one is potential resource, means the potential resources are those resources which are found in the region but had not been developed till now properly. मतलब हमारे पास उपलब्ध हैं लेकिन अभी तक हमने इस तरह से डेवलप नहीं किया उनको कि उनका इस्तेमाल कर सके। जैसे राजस्थान में सोलर एनर्जी है या गुजरात में विंड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है हमारे पास, इट इज़ अवेलेबल इन क्वांटिटी, बट एट दैट एक्सटेंट विच वी शुड यूज वी आर नॉट यूजिंग इट राइट नाउ। मीन्स पोटेंशियल है लेकिन हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं उसको, तो दैट इज पोटेंशियल रिसोर्स डेवलपमेंट के बेसिस पे। सेकंड वन इज ऑलरेडी डेवलप्ड रिसोर्स, मीन्स ऐसा रिसोर्स जिसको सर्वे किया जा चुका है, जिसकी क्वांटिटी हमें मालूम है, जो यूज में हमारे है, लाइक कोल, पेट्रोलियम एटसेट्रा, जो हमारे यूजेज में है, यूटिलाइजेशन में आ रहे हैं, इस्तेमाल में आ रहे हैं, तो ये हमारे हो गए डेवलप्ड रिसोर्स। फिर आता है स्टॉक, ऐसे रिसोर्स जिनके पास पोटेंशियल है कि ह्यूमंस की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजिकल नो हाउ नहीं है कि हमें ये मालूम है कि ये रिसोर्सेज हमारे लिए आगे चल के हमारे लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं, हमारी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, हमारी बहुत सी बचत करा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स साबित हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि इनको किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर कैन बी अ रिच रिसोर्स, बट स्टिल वी आर नॉट नोइंग द टेक्नोलॉजी हाउ टू यूटिलाइज इट, कि हमारे इस्तेमाल में आ जाए और कुछ नई चीजें हों। तो दिस विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ स्टॉक। देन वी हैव रिजर्व्स, जो हमारे पास रिजर्व्स हैं। अब ये रिजर्व नाम से ही बता रहा है, स्पेसिफिक स्टॉक्स, माने ऐसा रिजर्व कि हमारे पास जो इकट्ठा है, फॉर विच टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, टेक्नोलॉजी है लेकिन हम अभी उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं।
जैसे रिवर वाटर फॉर हाइडल एनर्जी, बहुत सी हमारे रिवर्स हैं जहाँ से हम हाइडल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, हमें मालूम है कि वो रिजर्व्स हैं, हमारी रिवर्स हमारी रिजर्व्स हैं, but still we are not using them at right now. So this is the classification of resources. Then two important topics here. One is development of resources. See, development of resources is very much vital and important for all of us. It is required for all of us, for our well-being, for well-being of all the humans actually, you can say for human survival and to maintain the quality of life, we all need the development of resources. But what is actually happening? We are just utilizing, we are not only utilizing, we are over utilizing the resources. ये जो शोषण करने लगते हैं हम, जब अति किसी चीज की हो जाती है, ओवर जो वर्ड यूज हुआ ओवर यूटिलाइजेशन, तो वहां प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स यहां भी सामने आ रही हैं। डेवलपमेंट तो बहुत जरूरी था, जैसा यहां मैंने बताया कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए या अपनी मेंटेन करनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या आने लगी? ओवर यूटिलाइजेशन। जब हम ज्यादा से ज्यादा यूज करने लगे तो प्रॉब्लम क्या आ गई? सबसे पहला कि रिसोर्स डिप्लीट होने लगे, खत्म होने के कगार पे आने लगे। कोई भी चीज है उसकी आवश्यकता से अधिक जब इस्तेमाल की जाएगी तो वो अपने एंड की तरफ बढ़ने लगेगा या उसकी क्वालिटी डिग्रेड करने लगेगी, तो दैट इज डिप्लीशन एंड दैट इज ओनली फॉर द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ लोग जरूरत से अधिक चाहते हैं कि क्या जितना रिसोर्स मिला है ज्यादा से ज्यादा कितना एक्सट्रैक्ट कर लो। Then we have unequal second topic that I was giving here, unequal resource distribution. अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी एरिया में मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं, कहीं मेटल्स बहुत ज्यादा हैं, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हुआ क्या भी कि वो कुछ फ्यू हैंड्स में रह गए। उससे था क्या कि ज्यादा जो गैप था सोसाइटी में भी, इकोनॉमिकली गैप भी बहुत ज्यादा मेंटेन होने लगा, कुछ फ्यू हैंड्स में वही इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या आगे बढ़ने लगे। Then the third problem that is due to the overutilization is global ecological crisis, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप सबने सुना होगा। तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग जो है वो जो हमारे रिसोर्सेज थे उनको ओवर यूटिलाइज करने की वजह से ही हो रहा है। एनवायरमेंट ही पूरा डिस्टर्ब होता चला जा रहा है। So this is the development as well as the problems faced by the overutilization. Today's last topic that I will teach you is sustainable development. Lot of times we have discussed it. In class 9th also we have discussed it in political science also. One part there was sustainability. So once again I'll give you, development should take place without damaging the environment. Means balance, इसका मतलब क्या हुआ? Balance use of resources. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सीधा सा मतलब होता है बैलेंस्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज, जिससे कि हम आज प्रेजेंट की जरूरत को भी पूरा कर सके और फ्यूचर के लिए भी उसको सेफ रख सकें। ऐसा ना यूज करने लगे कि आज ही यूज करके उसको डिप्लीट कर दें, खत्म कर दें और फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ ना बचे। तो उसी को डेफिनेशन वाइज जो मैं कह रहा हूं, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मीन्स ओवरऑल उसका कंक्लूजन है बैलेंस्ड यूज ऑफ द रिसोर्सेज सो दैट वी कैन यूज इट इन द प्रेजेंट एज वेल एज वी कैन सेव इट फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। क्योंकि और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है, जाहिर सी बात है, अगर हमें बैलेंस्ड यूज करना है, जैसा मैं कह रहा था बैलेंस्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, कई वर्ड्स इसके लिए यूज कर सकते हैं। उसके लिए जो मेनली चीज यूज होती है वो है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग, तो ये जो रिसोर्स प्लानिंग है ये है क्या? रिसोर्स प्लानिंग को हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि कैसे प्लान करके, देखिए हर चीज की एक प्लानिंग होती है। जब हमें मालूम हो जाता है कि हमें किस तरह से बचाना है, अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है कि हम आज भी यूज कर सकें और आगे बचा सकें, तो उसके लिए हमें प्लान्ड वे में चलना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में जब क्लास होगी तो वहां मैं आपको रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बताऊंगा। बाकी सॉयल एज अ रिसोर्स, लैंड एज अ रिसोर्स, ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।